Hello and welcome to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar, and today we shall be continuing or perhaps finishing our chapter Acids, Bases and Salts. This is part 3. So far we have learned what acids and bases are. We also learned what pH scale or pH value means. We also learned about some strong and weak acid bases. But do you know there are acids around you also? So let's see what are those. Vinegar has acetic acid. Vinegar is a liquid which is usually used as a preservative, जो अचार वगैरह चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, जिससे जो भी चीज़ है वो लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं. Then orange has citric acid. Tamarind मतलब इमली has tartaric acid. Tomato has oxalic acid. Sour milk or curd has lactic acid. Lemon has citric acid. Ant sting has methanoic acid, which is also called as formic acid. Nettle sting has methanoic acid, again that is also called as formic acid. Now, one more thing I would like to add is all these acids which you have learned are all weak acids. Now, why weak acids? ये सारी चीज़ें आप usually घर पे use करते हुए होंगे majority, excepting for nettle sting. बाकी तो आपने देखे और यूज़ भी किए होंगे काफ़ी बार. लेकिन इन एसिड्स या इन चीज़ों से कभी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, आपके हाथ जले नहीं होंगे. सो दैट मीन्स ये जो एसिड है वो वीक एसिड्स है. टुडे विल बी लर्निंग मोर अबाउट सॉल्ट्स. pH of salts. Salts of a strong acid and a strong base. अगर आप एक strong acid और एक strong base को combine करेंगे तो जो salt मिलता है it will be neutral and so its pH value will be 7. Salts of a strong acid and a weak base are a little acidic with pH value a little less than 7, and those of strong base and weak acid are basic with pH value more than 7. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती है. सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट. सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट. Sodium chloride is nothing but the regular salt which you use in your house. Deposits of solid salts are also found in several parts of the world. नीचे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं वैसे crystals salt के पाए जाते हैं. These large crystals are often brown due to impurities. क्योंकि सी वाटर में दूसरे भी कचरे impurity वगैरह होते हैं इसलिए इनका कलर यूजुअली थोड़ा हल्का सा ब्राउनिश होता है. And this is called rock salt. Common salt, a raw material for chemicals. काफ़ी सारे केमिकल्स बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट यानी कि जो NaCl सोडियम क्लोराइड है उसका इस्तेमाल किया जाता है. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use, such as sodium hydroxide (NaOH), baking soda, washing soda. Washing soda is basically the washing powder only, but it is called washing soda, थोड़ा formal language में. Bleaching powder and many more. Sodium hydroxide, पहला जो हम पढ़ेंगे that is sodium hydroxide. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, that is called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. नीचे आप reaction में देख सकते हैं, but उससे पहले what is aqueous solution? Solution आप जानते हैं कोई भी liquid form हो, किसी भी दो चीज़ों का mixture हो liquid form, that is called a solution. बट एक्वस सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जो कि पानी में वाटर में प्रिपेयर किया गया हो. एक्वा मीन्स वाटर एंड एक्वस सोल्यूशन मीन्स एनी सोल्यूशन दैट इज प्रिपेयर्ड विद वाटर. सो इन द रिएक्शन यू कैन सी NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड. जब उसमें आप पानी मिला दे, सिंपल ये नमक वाला पानी ही बना रहे हैं, नथिंग न्यू. जब आप नमक को पानी में मिला देंगे तो नमक वाला पानी मिलेगा. रिएक्शन के तौर पे देखें तो NaCl plus H2O will give you NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. तो अगर आपके घर में नमकीन या नमक वाला पानी आता हो सो दैट इज़ NaOH. अगर आपके घर में नमक हो, आपके टूथपेस्ट में नमक हो, ऐसा पूछना चाहिए था वैसे, हाँ जो भी, अगर आपके घर में नमक हो देन दैट इज़ NaCl. अगर आप उसमें पानी मिला देंगे तो इट विल बिकम NaOH दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड. केमिकल्स को आप थोड़ा रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो उन्हें याद रखना आसान होगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा.
द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये जो रिएक्शन है, प्रोसेस है, इसको क्लोर एल्कली भी बोलते हैं। क्लोर इसलिए क्योंकि क्लोरीन मिल रहा है, और एल्कली इसलिए क्योंकि एल्कली का मतलब होता है बेस, और यहाँ पे NaOH है, वो बेस है। सो क्लोर एल्कली प्रोसेस भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन is produced during the electrolysis of aqueous solution of that is sodium chloride. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। जो पिछला रिएक्शन था, आप सिंपली नमक और पानी को मिक्स कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको NaOH मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब आपको ये Cl2 और H2 सेपरेटली मिलेंगे। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली एक क्लीनिंग एजेंट होता है। किसी भी चीज़ को वो एकदम चकाचक चमका देता है, इतना चमका देता है कि वो उस सब्सटेंस का असली रंग भी उड़ा देता है, इतना क्लीन कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम आपको मालूम है CaOH। ड्राई, जब सूखा स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके ऊपर आप क्लोरीन का रिएक्शन कर दो तो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 which you can see in the below reaction. Through the actual composition in though the actual composition is quite complex. ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कंबाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन स्टिल यू कैन प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर which is CaOCl2. So remember this chemical formula for bleaching powder. It is oftenly asked in blanks and objective questions. These are few uses of bleaching powder. You may just pause the video and have a read. Basically, bleaching powder means a cleaning or a cleansing substance. Baking soda. The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras is baking soda. Sometimes it is added for faster cooking. या केक्स वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें जो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, that is this thing. The chemical name of this compound is sodium hydrogen carbonate, that is NaHCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. NaCl, आप रिएक्शन देखिए तो NaCl सोडियम क्लोराइड में जब पानी, CO2 और अमोनिया ये तीन चीज़ें मिक्स कर देते हैं NaCl के साथ, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं. वन इज़ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl which is a salt actually, and the other thing is sodium hydrogen carbonate which is baking soda. अगर आप ये बेकिंग सोडा को थोड़ा हीट कर देंगे तो आपको दो और चीज़ें मिल जाएंगी, that is Na2CO3 plus CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with H2O. अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है that is nothing but washing सोडा, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर आप समझ सकते हैं. सो खाने वाले सोडे से वो बन सकता है, लेकिन वो बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो हीट यहाँ कही गई है that is not the normal heat that we can produce at our homes. Here are few uses of sodium hydrogen carbonate NaHCO3. ये लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी लोग थोड़ा बेकिंग वगैरह सीख गए हैं, थोड़ा खाना कुकिंग वगैरह सीख गए हैं, तो सोडा वगैरह यूज़ भी किया होगा आई थिंक. बट इवन इफ़ यू हैवंट, you can just go through these uses. Next is washing soda, as I said Na2CO3. लेकिन सिर्फ Na2CO3 वॉशिंग सोडा नहीं होता. जब उसमें थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं सोडियम कार्बोनेट में, तब हम उसे वॉशिंग सोडा कहते हैं. नहीं तो यूं ही लोग बेकिंग सोडा में से वॉशिंग सोडा बना देते हैं और वॉशिंग सोडा में से बेकिंग सोडा. सो दैट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस टू डू. Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 into 10H2O, which is called washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. यानी कि आप वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं, बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं. It is also called a basic salt. You can see the reaction below. Simply sodium carbonate, जो कि पिछले रिएक्शन में हमने देखा था, उसमें पानी मिला दिया जाए वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो वॉशिंग सोडा बन जाता है, दैट इज Na2CO3 into 10H2O.
Here you may find some uses of washing soda. It is a cleaning agent again. Are the crystals of salts really dry? Salt हम जानते हैं, लेकिन उसके जो स्टोन जैसे सब्सटेंसेस सॉल्ट होते हैं, एक्चुअली जो रॉक सॉल्ट जो होते हैं, वो सही में ड्राई होते हैं क्या? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई, मतलब दिखने में वो सूखे लगते हैं, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो आप थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन देखिए. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट. जैसे हमने वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में देखा था Na2CO3 इंटू 10H2O हमने फॉर्मूला देखा था. तो किसी भी फॉर्मूला में अगर पीछे कोई नंबर लिख के बाजू में H2O लिखा होता है, देन दैट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये एक्चुअली उस सब्सटेंस में होता है, लेकिन वो गीला नहीं होता है. जैसे कि जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O है, लेकिन जब आप डिटर्जेंट पाउडर हाथ में लेते तो वो गीला नहीं होता, इट इज़ ड्राई. सो द वाटर विच इज़ एक्चुअली ड्राई, यू कैन से दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. But as a definition, you'll have to write water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. So, moving to the first paragraph again, second line. When we heat the crystals, यानी कि copper sulfate के crystals को जब आप heat करेंगे, this water is removed and the salt turns white. कॉपर सल्फेट यूजुअली ब्लू कलर का होता है, जैसे नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, उसके क्रिस्टल्स ब्लू होते हैं. इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, लेकिन जब इसे हम हीट करेंगे तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो ड्राई अप हो जाता है, और इस वजह से इसका जो कलर है वो ब्लू से वाइट हो जाता है. इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर, वापस अगर इसमें आप थोड़ा मॉइस्टन कर दो, थोड़ा पानी लगा दो, इट विल बिकम ब्लू अगेन. So as I said, water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate, यानी कि CuSO4. एक CuSO4 मॉलिक्यूल के साथ 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं. सो द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि उसमें वाटर है, copper sulfate is CuSO4 into 5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 into 10H2O is wet or not. Okay, one other result which possesses water of crystallization is gypsum. Gypsum क्या है? थोड़ा सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ. It has 2 water molecules as water of crystallization and it has the formula CaSO4 into 2H2O. The other name for gypsum is calcium sulfate. Now plaster of Paris. अजीब नाम लग रहा है ना, लेकिन आपने POP सुना होगा, जो हमारे घर के हॉल वगैरह में सीलिंग को थोड़ा डिज़ाइन क्रिएट करने या थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए करते हैं, POP. सो दैट इज़ फुल फॉर्म ऑफ दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. ऑन हीटिंग जिप्सम, ये जो हमने कैल्शियम सल्फेट बनाया था उसको अगर आप हीट कर देंगे, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड. हेमीहाइड्राइड इसलिए क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O. जब H2O होता है तो हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सोल्यूशन है, ये हाइड्रेटेड सब्सटेंस है. जब हाफ H2O होता है तो हम बोलते हैं हेमी. दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. जब प्लास्टर वगैरह हाथ पे या पैर पे कहीं पे लगते हैं तो दैट इज द सेम थिंग. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving a hard solid mass. तो डॉक्टर्स यही करते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है. कैसे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O. इसमें 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब हम ऐड करते हैं तो टोटल वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं 2. So the resulting thing is CaSO4 into 2H2O and that is nothing but gypsum. Also one more thing I would like to add is gypsum जो होता है वो सीमेंट बनाने में भी यूज़ किया जाता है. Here we finish with our acids, bases and salts. See you again with another interesting chapter. Till then, bye bye.